Hello everyone. So today we just learned the one of the famous tool. The name of this famous tool is a Wireshark. Okay. So Wireshark. First of all, why we are using a Wireshark? यानी कि Wireshark जो है उनका यूज क्या है, राइट? सो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर में एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट? सो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा ट्रावर्सिंग फ्रॉम दी एनआईसी, ओके, यानी बाहर के नेटवर्क में से डेटा आपकी सिस्टम में आएगा और आपकी सिस्टम में से बाहर जाएगा, तो ये जो ट्रैफिक है उसके ऊपर आप ट्रैप लगा सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो कीप इन माइंड, यहाँ पे डेटा को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द टूल, यू कैन ऑब्जर्व द डेटा which is traversing through the NIC network interface card. Okay, so I just open this tool. You can download this tool from the website. It's website Wireshark. So just type in Google Wireshark. So this is the Wireshark official website. You can download this Wireshark tool from any operating system. For example, if you are using Linux, Windows, Mac, so every operating system, you can download the various versions for different operating system. So see, just click on this download link. Once again, I click on this download button. Okay, download Wireshark. So this is the you can say proper link. Windows installer 64-bit, 32-bit. It is dependent on your operating system. If you are using 32-bit operating system, then you have to download this version. For 64, this version, Mac, then etc. Okay. So now after successfully installing, I just open this tool. This is the, you can say, home page of this particular tool. So here, see, various interface available. So for example, I also connected it means my laptop have a Wi-Fi also, right? So that's why this interface is indicated over here, but only Ethernet have some traffic. So it means my computer is connected through the Ethernet, right? So that's why data traversing through the Ethernet. That's why this kind of graph is indicated over here. So this is nothing but the traffic which is transferred from my system to outside and outside to my system. And other interface is idle. Why? Because there is no data traffic over here, right? So I think you are getting my point, right? Okay, so I just now click over here. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा कौन से, जहाँ पे डेटा ट्रैफिक आती है। सो सी, okay, I double click over here. By default, this kind of screen appear over here, and see, these all are the traffic shown over here, यानी यहाँ पे ये सारी ट्रैफिक शो करती है। सो पहले आपके माइंड में आएगा कि ओके, ये सारा डेटा, ये सब चीज़ें क्या है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दी स्टॉप बटन एंड just stop the capturing function. So see, these are the data captured by me within the, you can say, few seconds. Okay, so now I want to show you which kind of data and uh, captured by this particular tool. Okay, so just a minute, I just open this tool to indicate particular field. Okay, so you can easily understand, that's why I just open this tool, open board. Okay, so you can easily understand. See here, timestamp. So this is nothing but a timestamp. This is the source IP. It means source IP of this particular data. Then this is the destination IP. So destination, it means my computer, my laptop. So you can see destination IP is similar 50, right? एंड दिस इज द प्रोटोकॉल, बिकॉज हमें ये पता है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो यहाँ पे टीसीपी लिखा है। राइट नाउ मैंने कोई भी सर्चिंग, सर्फिंग कुछ भी नहीं किया है, बट फिर भी इफ़ योर सिस्टम कनेक्टेड विद द इंटरनेट, तो कुछ तो कम्युनिकेशन होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ट्रैफिक शो हो रही है। बाकी जब आप सर्फ करोगे, जब इंटरनेट यानी कि ब्राउज़र ऑन करके जब आप
सर्च करोगे एट दैट टाइम वो जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें उसके बारे में है, लाइक एक्नॉलेजमेंट है, सीक्वेंस नंबर है एंड एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे ये पोर्ट नंबर है 443। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कुछ पैकेज के बारे में, सो आपको वो पर्टिकुलर पैकेज को क्या करना है, डबल क्लिक, जस्ट सिलेक्ट दिस एंड डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। सो यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, लाइक आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा कि फ्रेम होती है, पैकेज होते हैं, वो नेटवर्क में ट्रैवर्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको जानने को मिलेगा कि पैकेज के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। सो दिस प्रैक्टिकली और लाइव एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक पैकेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दी पैकेज, लाइक यहाँ पे ये देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसकी आईपी है और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, फिर यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को यूज़ किया है, तो उसका यहाँ पे आईपी लिखा है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे वो प्रोटोकॉल के बारे में है कि पोर्ट नंबर 443 यूज़ कर रहे हैं, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है वो 5778 है एंड एक्सेट्रा। तो आप बोलोगे सर ये सारी इंफॉर्मेशन है, उसका क्या काम है। ओके, सो सी इट इज़ डिपेंड ऑन दी योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है उनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो नॉर्मल पर्सन भी उसको इजीली यूज़ कर सकता है, और इथिकल हैकर, हैकर जो है जिसको डेस्टिनेशन और टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी इनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो ये थी इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे एक जो एड्रेस बार जैसा दिख रहा है वो है फिल्टर। तो मान लो कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर तो की है, बट आपको जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए वो इसमें से कैसे आप ढूंढोगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। ओके, सो फिल्टर के लिए मान लो कि आपको कोई आईपी एड्रेस बेस्ड फिल्टर लगाना है, यानी कि आपकी सिस्टम काफ़ी सारे आईपी के साथ कनेक्टेड है, बट आपको वो स्पेसिफिक आईपी जो है उसकी ही ट्रैफिक चाहिए, देन आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। सो I also show you the one of the good website. So just type over here Wireshark tutorial. So you can get the, you can say, help various filter from this website. I think Wireshark Java T point, Java T point. Okay, okay. So Java T point Wireshark. So this is the website. Here you got the few idea and what is the Wireshark and etc. etc. Okay. So see, right now I'm interested in filter. Okay. Right now I'm interested in filter. So how to apply various filter. Okay. See, I just start यहाँ से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आईपी बेस्ड फिल्टर, यानी मुझे क्या करना है, आईपी बेस्ड फिल्टर लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखना होगा आपको, आईपी एड्रेस, ये चीज़ लिखनी है। ओके, तो लेट्स सी, हम ये ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट पुट किया IP.ADDR इक्वल टू आईपी एड्रेस। तो देखो ये आईपी एड्रेस जो है वो उनको नहीं मिला, यानी फिल्टर में रिजल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं। वाई, बिकॉज ऐसा कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं। ओके, हमारी जो ट्रैफिक है इसमें ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ओके, तो आपको जो ट्रैफिक में आईपी एड्रेस है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ कैप्चरिंग। तो आपको वो जो शार्क का जो है बटन जैसा, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन है, कंटिन्यू विदाउट सेविंग भी है, तो मैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग करता हूँ। अभी ये लाइव ट्रैफिक जो है उसको क्या करने लगा, कैप्चर्ड करने लगा, बट यहाँ पे फिल्टर्ड है, इसकी वजह से कुछ डेटा शो नहीं हो रहा है। ओके, सो जस्ट वेट, एक मिनट, फिर से मैं करता हूँ, स्टॉप, स्टार्ट विदाउट सेविंग, और यहाँ पे ब्राउजर में जाके कुछ ट्राई करता हूँ सर्चिंग करने की, तो उसके हिसाब से क्या होगा, डेटा ट्रावर्स होगा, ट्रांसफर होगा, और वो डेटा यहाँ पे वायरशार्क में शो होगा। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए।
Okay, just a minute. स्टॉप अगेन, फिर से मैंने स्टॉप किया है, कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर रहा हूँ। ओके, सो इट मीन्स पहले वाला जो फिल्टर था उनकी इम्पैक्ट थी, दैट्स वाई वो डेटा शो नहीं कर रहा था। बट सी नाउ वेरियस डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईपी मुझे मिला, फॉर एग्जांपल कौन सा वाला, दिस दिस आईपी। तो मुझे ये आईपी के बारे में क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एक फिल्टर लगा दूंगा। ओके, कौन सा आईपी है, फॉर एग्जांपल सोर्स आईपी दिस वन। और उसके लिए फिल्टर्ड का फॉर्मूला क्या था, आई पी डॉट ए डबल टी आर इक्वल टू। सी, इफ योर फॉर्मूला इज रॉन्ग, देन क्या होगा, वो रेड, बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। बट करेक्ट होगा तो बैकग्राउंड कैसे होगा, ग्रीन। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अभी करेक्ट है और मैं यहाँ पे उनको अप्लाई करूंगा, यानी एरो पे क्लिक करूंगा। सी, काफी सारा डेटा था बट उसमें से फिल्टर्ड करके ओनली वही डेटा हमें शो करेगा जिसका सोर्स, सॉरी जिसका आईपी एड्रेस जो है वो ये वाला है। ठीक है, सो दिस इज दी फिल्टर्ड। और अभी आप वो पर्टिकुलर, यानी आपको वो आईपी वाला पैकेज मिल गया, और उसके अंदर आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका जो टारगेट है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, वो आप इजीली फाइंड कर पाते हो। अगर आपका स्पेसिफिक इंटेंशन ऐसा है कि मुझे सोर्स में से ही ये आईपी चाहिए या डेस्टिनेशन में ही ये आईपी चाहिए, तो भी आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिल्टर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे IPSRC यानी सोर्स का आईपी वो ओनली फाइंड करेगा, IPDST यानी डेस्टिनेशन का आईपी वो फाइंड करेगा। लाइक ये जो है वो IPADDR यानी कि एड्रेस, इसमें वो सोर्स में हो या डेस्टिनेशन में आपको फैच करके डिस्प्ले कर देगा। अगर अगर आपका टारगेट ये है कि नहीं मुझे ओनली सोर्स में ही फाइंड करना है, तो SRC, तो ये ओनली सोर्स में फाइंड करेगा। आपका टारगेट ये है कि नहीं मुझे डेस्टिनेशन में फाइंड करना है, तो DNS, सॉरी DST, DST, तो ये ओनली डेस्टिनेशन में। तो अनफॉर्चुनेटली हमें डेस्टिनेशन में ऐसा कोई आईपी मिला नहीं जिसमें कोई भी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। सो आई होप कि आपको आईपी बेस्ड फिल्टरिंग है वो अच्छे से पता चल गए। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोटोकॉल बेस्ड भी फिल्टर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रोटोकॉल का नेम लिखना है। यहाँ पे मान लो कि प्रोटोकॉल आपने काफ़ी सारे पढ़े हो गए, टीसीपी, आपको टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक चाहिए, तो यहाँ पे आप टीसीपी लिखोगे तो जितने भी टीसीपी वाले प्रोटोकॉल है वो मिल जाएंगे। अभी आपको और भी आगे फिल्टर करना है, तो टीसीपी का पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के हिसाब से फिल्टरिंग करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पहले लिखा था, टीसीपी पोर्ट इज इक्वल टू 80 एंड यूडीपी पोर्ट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे सॉरी मैंने एंड बोला, बट एक्चुअली ये सिंबल और का है। तो यानी इसका मतलब ये है कि टीसीपी का अगर 80 का पोर्ट या तो यूडीपी का 80 का पोर्ट, दोनों में से एक भी चीज़ मिलती है तो आपको वो शो कर देगा। ठीक है, तो आप इस पोर्ट नंबर के हिसाब से भी फिल्टरिंग कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ हुई, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर जो मैंने अभी ही आपको शो बताया, यूडीपी टीसीपी। ठीक है, और यस, यहाँ पे देखो कंटेन, आप पर्टिकुलर डोमेन नेम के हिसाब से भी फिल्टर्ड लगा सकते हो। लाइक अ प्रोटोकॉल, यहाँ पे टीसीपी कंटेन फेसबुक, यूडीपी कंटेन यूट्यूब, या तो जो भी आपका डोमेन नेम है वो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा टीसीपी कंटेन फेसबुक, तो ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी तक हमारे रिकॉर्ड में ऐसा फेसबुक जैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक टाइप करता हूँ, फेसबुक, बट उससे पहले यहाँ पे फिल्टरिंग मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिल्टर जो है ये डेटा को जाने देता हूँ, ये नया फिल्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मैं फेसबुक यहाँ पे विजिट करता हूँ, फेसबुक मैंने सर्च किया और फेसबुक के लॉगिन पेज पे मैं गया, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे एंटर कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ओके,
ओके, सो यहाँ पे डेटा शो हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैप्चर हो जाने देते हैं। ये स्टेप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर से फेसबुक सर्च किया, फेसबुक लॉगिन पे गए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर टाइप कर देते हैं और इनवैलिड ही होगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी फिल्टर स्टॉप कर देते हैं। नाउ फेसबुक को सर्च करते हैं, कंटेन फेसबुक, कंटेन फेसबुक, टीसीपी कंटेन फेसबुक। नो रिस्पॉन्स, यूडीपी पे ट्राई करते हैं, नो रिस्पॉन्स। एचटीटीपी करते हैं ट्राई, नो रिस्पॉन्स। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में मिस्टेक है। टीसीपी कंटेन्स फेसबुक। ओके, सॉरी टू से, बट यहाँ पे फेसबुक का कोई पेज या तो कोई ट्रैफिक जो है वो शो नहीं हो रहा है। ओके, इसके लिए फॉर्मूला है वो आई थिंक देखना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से, वायर शार्क। इसमें काफ़ी सारे आप अपने हिसाब से फिल्टर्ड बना सकते हो, एंड और कंटेंट, ये सब जो है उसको कंबाइन करके। और भी काफ़ी सारे फीचर्स है यहाँ, लाइक एनालाइज है, स्टेटिस्टिक है। ये सब फीचर्स जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। So I hope you all are enjoy this video, and if you have any idea about a tiny project of this kind of, with the help of this Wireshark, so you can also share with me. So thank you so much for your time.